الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار نبی مکرم شفیع معظم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے چند مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی۔ زمین و آسمان اللہ نے پہلے پیدا فرمائے، فرشتوں کو پہلے پیدا فرمایا، جنات کو پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو ایسے کو نائب بنانے والا ہے جو زمین پر جا کر کے خون ریزیاں کریں گے، زمین پر جا کر کے فساد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اچھا، یہ فرشتوں نے کہا کیوں تھا؟ فرشتوں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کے سامنے جناتوں کی زندگی تھی۔ جنات چونکہ خون ریزیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے، لڑائیاں لڑتے، تو فرشتوں کو زمین پر ان کو سزا دینے کے لیے آنا پڑتا تھا۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، تو یا اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے کہ جو جا کر کے فساد پیدا کریں گے، ایک دوسرے کی خون ریزیاں کریں گے، تو نائب انسان کو بنانے والا ہے۔ اب چونکہ ان کی نظر میں یہ باتیں تھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہے نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر عبادت ہی مقصود ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو عبادت کرنے کے لیے تو ہم تیرے لیے کافی ہیں، ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کافی ہے کہ تیری عبادت کرنے کے لیے۔ تو اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے ہمارے باپ، ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو 5 چیزوں سے پیدا فرمایا۔ کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے۔ پہلی مٹی، ہوا، پانی، آگ، اور 5ویں روح۔ ان 5 چیزوں سے انسان کو پیدا فرمایا گیا۔ مٹی، ہوا، پانی، آگ اور 5ویں روح۔ یہ روح کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ روح ہے کیا، تو روح کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنا ہی بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح وہ ہے جو صرف روح جو ہے اپنے رب کا حکم ہے، روح آپ کے رب کا حکم ہے۔ یعنی روح کیسی ہے، کیسی دکھتی ہے، کیسے پیدا کی، کیسی مخلوق ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، بس اتنا ہی بتایا گیا یہ رب کی طرف سے ایک حکم ہے، اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے۔ روح ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے۔ جب کہا جاتا ہے روح جسم کے اندر چلی جا تو چلی جاتی ہے، جب کہا جاتا ہے روح جسم سے نکل جا تو نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی روح بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ روح بڑی لطیف شے ہے، بہت خوبصورت شے ہے، بڑی لطیف شے ہے، روح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ تو ان 5 چیزوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی انسان کی تخلیق ان 5 چیزوں سے ہوئی۔ جب روح ڈالی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ آپ کی زبان سے سب سے پہلے یہ جملہ نکلا تو فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا،
اب جب حضرت آدم अलैहिस्सलाम को तख्लीक जब कर दिया तो अल्लाह ने इंसान के लिए 5 आलम पैदा फरमाए। कितने आलम पैदा फरमाए? 5 आलम पैदा फरमाए। उन 5 आलम से हर एक इंसान को गुजरना है, मुझे भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है। पीर हो, काम वली हो, अंबिया हो, नबी हो, सबको उन 5 आलम से गुजरना है। वो 5 आलम क्या हैं? बड़ी अच्छी मालूमात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। फरमा के वो 5 आलम क्या हैं? पहला आलम तो वही है आलम अरवाह, रूहों की दुनिया, जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया तो आपने देखा कि आपके दाहिने कांधे की जानिब से कुछ भूसी की तरह जो है निकल रहा है, सफेद रंग का। फिर आपने देखा कि आपकी बाएं जानिब से, बाएं कांधे की तरफ से इसी तरह से कुछ निकल रहा है, उसका रंग सियाह है, काला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये क्या है जो मेरी दाहिनी जानिब से निकला है, इसका रंग सफेद है, जो बाईं जानिब से निकला उसका रंग सियाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आदम, हम जानते हैं अपने इल्म से कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। ये जो तुम्हारे दाहिनी जानिब से जो निकली हैं ये रूहें हैं, ये वो रूहें हैं जो सफेद रंग की रूहें हैं कि हम अपने इल्म से जानते हैं कि दुनिया के अंदर जाएंगे, अच्छे आमाल करेंगे, नेक आमाल करेंगे, इनको आमाल की बना पर जन्नत में भेज दिया जाएगा। यानी ये जन्नती रूह हैं और हम अपने इल्म के एतबार से जानते हैं। और ये जो बाएं जानिब से जो आप देख रहे हैं कि सियाह रंग से जो कुछ निकल रहा है, फरमा के ये वो रूहें हैं कि जो दुनिया के अंदर जाएंगे, शिर्क करेंगे, कुफ्र करेंगे, गुनाह करेंगे और इनको इनके गुनाहों की बदौलत जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा। यानी ये वो रूहें हैं जो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए भेजी जाएंगी, और जिसको हम जानते हैं पहले ही से। और ये भी जानते हैं कि हम अपने इल्म के एतबार से कि ये दुनिया में जाकर यही करेगा, ये हमने जान लिया है कि दुनिया के अंदर कौन अच्छा काम करेगा, कौन बुरा काम करेगा, कौन नेकी करेगा, कौन गुनाह करेगा, ये हमने जान लिया। उसी एतबार से हमने आपको बता दिया कि ये जन्नती रूहें हैं और ये जहन्नमी दोज़खी रूहें हैं, तो आप जान लिया। तो 5 आलम है। पहला आलम तो आलम अरवाह है, रूहों की दुनिया। तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ क़यामत तक जितनी रूहें पैदा होने वाली हैं और जितने लोग पैदा होने वाले हैं क़यामत तक के लिए, अल्लाह ने उन तमाम रूहों को भी पैदा फरमा दिया था। बात समझे आप? तो पहला आलम क्या है? आलम अरवाह। फिर दूसरा आलम आलम दुनिया। आलम अरवाह से हम फिर दुनिया के आलम में, आलम दुनिया में यहाँ आए। ये जो आलम है ये बड़ा मुख्तसर सा आलम है, बहुत छोटा सा। यहाँ 60, 70, 65, 80, 90, 100, इससे ज़्यादा अब तो बहुत मुख्तसर सी उम्र हो रही है, कौन कब कैसे चला जाए। तो फरमाया ये जो दुनिया का आलम है ये बहुत मुख्तसर सा आलम है, छोटी सी उम्र है। जब ये आलम की मिकदार जब पूरी हो जाती है तो फिर जो है एक और आलम आता है जिसको तीसरा आलम कहते हैं, वो है आलम बरज़ख। अभी मैं ज़िमनन बता रहा हूं, तफसील से मैं आपको बताऊंगा, पहले 5 आलम आपको बता दूं। तीसरा आलम क्या है फिर? आलम बरज़ख, यानी कब्र की मंजिल। अब ये रब जानता है कि जो आलम बरज़ख है उसका भी अरसा बड़ा तवील है कि कब क़यामत आएगी, ये तो रब ही जानता है। जब तक क़यामत नहीं आती है तब तक इंसान को आलम बरज़ख में रहना है। आलम बरज़ख में भी फिर 2 आलम हैं, एक है आलम इल्लीन और है आलम सिज्जीन। ये दूसरा आलम है। आलम इल्लीन उस आलम को कहते हैं कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जो नेक रूहें होती हैं वो इल्लीन में जाती हैं। और इल्लीन का आलम यह है कि वहाँ अंबिया की रूहें भी होती हैं, वलियों की रूहें होती हैं, गौस कुतुब अब्दाल की रूहें भी होती हैं। वहाँ नेक रूहें होती हैं। और जो इल्लीन में जाता है वो सबसे मुलाकात भी करता है। सुभान अल्लाह। और दूसरा आलम क्या है आलम बरज़ख का? वो है सिज्जीन। यानी जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो दोज़ख में जाता है, यानी सिज्जीन में जो दोज़खी रूहें होती हैं, दोज़ख में जाने वाली हैं, अजाब की जो मुस्तहिक हैं, फरमा के वो उनमें जाता है। तो मुख्तसर ये कि आलम बरज़ख में भी 2 आलम है, आलम इल्लीन और आलम सिज्जीन। तो तीसरा आलम क्या हुआ? आलम बरज़ख। और ये कब तक रहेगा? जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती है। क़यामत नहीं आ जाती है, रब जानता है कितना अरसा रहना है। फिर चौथा आलम है आलम हश्र, आलम क़यामत, हश्र का आलम। हदीस पाक में आता है कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अल्लाहु अकबर। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा।
उसको कहते हैं आलम हश्र। अब जब वो आलम जब गुजर जाएगा तो फिर आता है आलम आखिरत, पांचवा आलम, आलम आखिरत। उसके बाद कोई आलम नहीं। दर्जात के मुताबिक, आमाल के मुताबिक दर्जे तय किए जाएंगे कि जन्नत में आपको किस दर्जे में रहना है, अपने आपके आमाल के मुताबिक। और ईमान के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि आप जन्नत में जाएंगे कि दोज़ख में जाएंगे। यानी ईमान पर अगर खात्मा होता है तो जन्नत है, और ईमान पर अगर खात्मा नहीं होता है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख है। अब आलम जो आखिरत है, वो आलम आखिरत की कोई मिकदार नहीं है, कोई जो है उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, क्योंकि वहां तो फिर हमेशा हमेशा के लिए रहना है। जो दोज़ख में जाएगा वो हमेशा के लिए दोज़ख है, और जो जन्नत में चले जाएगा वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत ही में रहेगा। वहां के लिए अब कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, फिर तो हमेशा की जिंदगी है। उसको आलम आखिरत कहते हैं। ये पांच आलम है कि जिन आलम से, इन पांच आलम से हर एक शख्स को गुजरना है, जो अभी मैंने मुख्तसर से वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं आखिर में कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो साथ साथ में रूहों को भी पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूहों को जब पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने देखा कि इतनी सारी अरवाह हैं, इतनी सारी रूहें हैं, इतनी वसी मखलूक है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, सबसे ज्यादा तो मखलूक यही है तेरी। अब तो कहता है कि ये जमीन पर जो है जाएंगे, जमीन पर तो इनको जो है अपना नायब, अपना खलीफा बनाना चाहता है। परवरदिगार आलम, इतनी वसी मखलूक तेरी छोटी सी जमीन पर कैसे समाएगी? सुनिएगा, बड़े मजे की बातें, बड़ी और जो है बड़ी इल्मी बातें हैं। तो फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, इतनी सारी मखलूक आज से लेकर क़यामत तक, ये तो बहुत बड़ी मखलूक है, बहुत ज्यादा तादाद में है। या अल्लाह, और तेरी जमीन तो तंग पड़ जाएगी, रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। परवरदिगार आलम, फिर ये रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे? इतनी जमीन पर तो ये तेरे बंदे आ नहीं पाएंगे। तो रब ने फरमाया कि मैं मौत को पैदा फरमा दूंगा। क्या कहा? कि मौत को, यानी दुनिया में एक अरसे तक रहेंगे, एक अरसे तक बरतेंगे, फिर इनके ऊपर मौत मुसल्लत कर दी जाएगी, यानी मौत आ जाएगी, ये दुनिया से चले जाएंगे। फरिश्तों ने फिर अर्ज किया, या अल्लाह, अगर ये इतने से मुख्तसर वक्त के लिए तू उनको भेजेगा दुनिया में और मौत आएगी इनको, तो फिर ये तो सारी जिंदगी मौत के गम में ही घुलते चले जाएंगे। आमाल क्या करेंगे फिर ये? यानी इनको तो बस यही फिक्र होगी कि मरना भी है, 60, 70, 80 साल की उम्र में दुनिया से चले जाना, तो ये तो इसी में ही जो है घुल करके मर जाएंगे। इस छोटी सी उम्र में फिर क्या करेंगे, ये अमाल क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमाया, मैं उम्मीद को पैदा फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी एक उम्मीद ही तो होती है ना, हम सब उम्मीद पर ही तो जी रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया है, अच्छे अमाल करेंगे, गुनाह हो जाएं तो अल्लाह ताला की बारगाह में मग़फ़िरत भी है, तौबा भी है। एक उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे, ईमान पर खात्मा होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें जन्नत अता फरमा देगा, है नहीं? तो फरमाया कि मैं उम्मीद को पैदा फरमाऊंगा। तारीख में आता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब वक्त आया, मलकुल मौत आपकी रूह लेकर के जब आसमान की तरफ लेकर के चले, तो पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा थोड़े से जलाली हैं, आपको जो है जलाल जल्दी आ जाया करता था, जहां नाहक बात देखी आपको जलाल आ जाया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात जब करते हैं पहले आसमान पर, तो मलकुल मौत ने कहा, आप इनको सलाम कीजिए, ये आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा कि आप ही हमारे बाप हैं, आप ही वो हैं कि जिनकी वजह से हमें दुनिया में आना पड़ा, जिनकी वजह से हमें दुनिया में इतनी मशक्कतें झेलनी पड़ी, जिनकी वजह से हमने जो है दुनिया में आना पड़ा और जन्नत में जाने के लिए कितनी जो है मशक्कतें हमें झेलनी पड़ी हैं। आप ही वो हैं कि आपको मना नहीं किया गया था जन्नत में दरख्त के करीब मत जाना, कि आपको मना नहीं किया गया था कि गेहूं का दाना मत खाना। अगर आप न दाना खाते, अरे खाना तो दूर की बात है आपसे, तो वला तक़रब हाज़िही शजरा, कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना, तो आपने खा ही लिया और फिर आपकी वजह से आप दुनिया में आए, आपकी वजह से हम दुनिया के अंदर आए, कितनी मशक्कतें हमको झेलनी पड़ी दोबारा जन्नत में जाने के लिए। अगर आप ना खाते और आप जो है दुनिया में नहीं आते तो हम जन्नत में पैदा होते, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद होते, जन्नत ही के अंदर रहते और जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठाते। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ एक बात
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सवाल था ना, ये मुनाजिराना सवाल था, ये कोई वैसा सवाल नहीं था कि साइल वाला के आपने ऐसा, कि नहीं, मुनाजिराना सवाल, आपने ऐसा क्यों कर दिया, कितनी हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं दुनिया में आने के बाद में, जन्नत तक पहुंचने के लिए, आप नहीं खाते तो हम जन्नत ही में तो रहते ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, कहते हैं आका अलैहिस्सलाम, ऐसा जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कि जब अल्लाह तबारक तआला ने रूहों को जब पैदा फरमाया तो तकदीर को भी पैदा फरमाया है कि नहीं, बल्कि फरमाया कि इंसान की पैदाइश से पहले 7000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को पैदा फरमा दिया था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने आपको भी इल्म दिया है, मुझे भी इल्म दिया है, मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की तख्लीक से पहले तकदीर को कितने साल पैदा फरमाया? का 7000 साल। कहा जब 7000 साल पहले तकदीर को पैदा फरमा दिया था तो ये तकदीर में था कि मैं जन्नत में पैदा किया जाऊंगा, जन्नत में दरख्त होगा और जन्नत का दरख्त के फल में खाऊंगा, वो गेहूं का दाना मुझे खाना है, दुनिया में आना है। तो ये तकदीर का हिस्सा था, ये मैंने नहीं बल्कि रब की मशीयत थी कि मैं खाऊंगा, दुनिया के अंदर आऊंगा है। ये ऐसा जवाब था कि मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। वरना आप बताएं कि रब तबारक तआला तो हर शे पर कादिर है, अगर अल्लाह तबारक तआला चाहता तो वो जन्नत के अंदर वो दरख्त ही पैदा नहीं फरमाता कि मैं तो हर शे पर कादिर हूं ना, कि ना आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब जाना तो दूर की बात में दरख्त ही पैदा नहीं फरमाता। अल्लाह तो हर शे को जानता है, अल्लाह के पास तो हर एक चीज का इल्म है, मैं दरख्त ही पैदा नहीं फरमाऊंगा जो ऐसा काम हो कि वो गेहूं का दाना खाए और फिर दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर इतनी परेशानियां उठानी पड़े। नहीं, ये मशीयत खुदाबंदी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता था, उसकी मशीयत थी, आदम अलैहिस्सलाम दाना खाएंगे और दुनिया में जाएंगे और उनके जरिए से फिर क़यामत तक जो है इनके नस्ल से जो है दुनिया आबाद कर दी जाएगी। क्यों? इसलिए ताकि लोग दुनिया के अंदर आएं और दुनिया के अंदर मशक्कतें झेलें, परेशानियां उठाएं, आमाल करें, मेहनत करें और जो है गुनाहों से बचें और जो है नेकियां करें, आमाल करें, और फिर उस आमाल के बदले जब उनको जन्नत अता की जाएगी तो उसकी कदर करेंगे, समझेंगे कि हाँ, जब किसी परेशानी के बाद कोई, और जब कोई नेमत काफी वक्त जब दूर रहती है और दूर रहने के बाद में काफी वक्त के बाद में वो नेमत जब उसको मिलती है तो उस नेमत की कदर होती है। बात समझे आप? ताकि उनको पता चले जन्नत की कदर क्या है, जन्नत की नेमतें क्या है ना। आसानी से अगर हर चीज मिल जाती है ना तो बड़ा इंसान को वो कदर नहीं रहती है। फरमा के ये वजह है इसकी, ताकि लोग जाने कि जन्नत को पाने के लिए आप कोशिश करते रहें, जन्नत की कदर जाने, जन्नत की नेमतों की कदर जाने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो अब हजरत आदम, तो फरिश्तों ने क्या अर्ज की, या अल्लाह, ये जो दुनिया में है जाएंगे, अब तो क्या नाम है, ये आमाल क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमा कि मैं उम्मीद को पैदा फरमा दूंगा, मैं उम्मीद को पैदा फरमा दूंगा कि उम्मीद रहेंगे, उम्मीद करेंगे अल्लाह तबारक तआला से। उम्मीद, यही तो बात है कि अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद रखना चाहिए। फरमाया कि बंदा जैसा मेरे से गुमान करता है मैं उसके साथ में वैसा ही सलूक करता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही गुमान, अच्छा सलूक करता, अगर वो अच्छा सलूक करता है मैं उसके अच्छा गुमान करता है तो मैं उसके साथ में अच्छा सलूक करता हूं, अगर वो मेरे साथ में बुरा गुमान करता है तो मैं उसके साथ में वैसा ही सलूक किया जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा अच्छे गुमान की उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह से हमेशा अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। तो आलम अब जो है तकदीर को जब पैदा फरमा दिया, अच्छा तकदीर की भी दो किस्में हैं, एक है तकदीर मुबरम और एक है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम तो यह है जो अटल है, जिसके पाबंद अंबिया कराम भी है। यानी तकदीर मुबरम का मतलब यह है कि जो चीज होनी है वो होनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता सिवाय एक जात के। एक जात है जो तकदीर मुबरम की भी पाबंद नहीं है, अंबिया भी उसके पाबंद हैं। यानी तकदीर मुबरम क्या है? जैसे मौत है, दुनिया में आना है, ये तकदीर मुबरम है। अल्लाह जब चाहेगा दुनिया में आपको आना है, और जब दुनिया से जाना है ये तकदीर मुबरम है कि ना एक सेकंड आप इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, ना कम ना ज्यादा। जिस वक्त रब तबारक तआला ने लिख दिया है कि आपको उस वक्त मौत आनी है और इस हाल में आनी है, यहाँ आनी है, तो लिहाजा आपको उसी वक्त मौत आएगी, उसी हाल में आएगी, उससे एक सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता है, उससे कुछ भी जो है फरार किसी को हासिल नहीं है। चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जो है तदबीरें लगा ले, और लोगों ने तदबीरें लगाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा करना चाहा तो क्या नमरूद ने कोशिश नहीं करी? नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि मैंने एक रात ख्वाब देखा है कि उसका तख्त हिला, जलजला आया
ہے نا, उसके तख्त को गिरा दिया गया. उसने सोचा कि यार ये क्या है, नजूमियों को बुलाया और कहा कि क्या बात है. तो कहा कि तेरी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा और तेरे तख्त व ताराज को मिट्टी में मिला देगा. तो कहा अच्छा कब पैदा होने वाला है. कहा इन्हीं दिनों में पैदा होने वाला है. तो नमरूद ने क्या किया, मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा, मैं बच्चा. अब ये तकदीर से देखो, तकदीर से खिलवाड़ हो रही है यहाँ पर. यानी रब चाहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और नमरूद कह रहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा. उसने क्या ऐलान कर दिया कि लड़कियां पैदा हो छोड़ दिया जाए, लड़का पैदा हो तो खत्म कर दिया जाए. और यही किया. न जाने कितने बच्चों को कत्ल कर दिया गया, न जाने कितने बच्चों की लाशें बिछा दी गई. कोई जो है पैदा होता है फौरन कत्ल कर दिया जाता है. नमरूद के सिपाही हर मोहल्ले हर गली चप्पे चप्पे घर के दरवाजे पर मौजूद हैं. लेकिन आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं हजरत तारख, पेशे से वो नमरूद के बॉडीगार्ड, पेशे से नमरूद के बॉडीगार्ड हैं. अब रात की तारीकी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो नमरूद के महल में है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा को आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर हुई. अब ये देखिए रब जब चाहता है तो दुश्मन भी अगर हो कितनी भी कोशिश कर ले, जो होना है वही होता है जो रब चाहता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा को ख्वाहिश हुई मिलने की, आप गई और वहीं पर उसी के महल में आप देखें कि बुनियाद भी वही रखी जा रही है जो चाहता नहीं है कि वो बच्चा पैदा हो जो मेरी हुकूमत को ज़वाल लेकर के आए. वहीं जाकर के आप मुलाकात करती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने शोहर से मुलाकात करती हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के शिकम में करार पकड़ते हैं. आप आ जाती हैं और आपको ये महसूस होने लगा कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. लेकिन कुदरत का करिश्मा आप ये देखें, न पेट जाहिर होता है, न औरतों के जो उन दिनों में जो अय्याम होती हैं पलटी आना, मतली होना या कुछ इस तरीके के जो हालात होते हैं वो भी कुछ भी नहीं होता. न पेट, बिल्कुल किसी पड़ोसी तक को ये नहीं गुमान के इसके पेट में बच्चा है. तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को जब बताया उनकी वालिदा ने, तो कहा मुझे लगता है ये वही बच्चा है जो नमरूद की हुकूमत को खत्म करने वाला है. क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अल्लाह तबारक तआला की कुदरत का करिश्मा यह है कि इस बच्चे को जाहिर नहीं किया, पेट जाहिर नहीं किया, हमल जाहिर नहीं किया. तो मतलब यह है कि ऐसा ये वही बच्चा है जो इसकी हुकूमत को ज़वाल लेकर के आएगा. अल्लाहु अकबर. और आप देखें तकदीर के साथ में किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, तकदीर के साथ में. और जब आपकी पैदाइश हुई तो आप जंगल की तरफ गए, एक पहाड़ में गए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो नमरूद ने चाहा कि पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि पैदा होंगे. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? है नहीं. तो तदबीर चाहे कोई कितनी भी कर ले, तकदीर मुबरम यह है कि जब रब जो चाहता है उसको कोई बदल नहीं सकता है. जब आप पैदा हुए तो आप सुबह और शाम जाया करती थी, यानी फजर से पहले और मगरिब के बाद में. अंधेरा इधर भी होता था, अंधेरा ताकि कोई पहचान ना पाए, देख ना पाए. आप जब दूध पिलाने जाती तो आप दूध पिला करके जब दूसरे दिन गई तो हैरत हुई कि जितना बच्चा एक महीने में बढ़ता है एक दिन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बढ़ते हैं. 12 दिन मुसलसल जाती है, 12 दिन 1 साल के हो जाते हैं. और फिर जब 1 साल के हो गए तो ये इतनी जल्दी जो परवान चढ़ रहे थे, इतनी जल्दी जो आपकी जो हाइट जो बढ़ रही थी वो क्यों थी? ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये दिखाना चाहता था, ये लोगों देख लो मेरी कुदरत ऐसी है जो मैं चाहूं कर सकता हूं. और नमरूद को ये महसूस ना हो कि ये बच्चा अभी का है, ताकि जब आप उनके सामने जाए तो ऐसा महसूस हो ये तो अभी का नहीं, काफी साल पहले का बच्चा है ना. अल्लाहु अकबर. और 1 साल की उम्र में आपके अंदर ताकत इतनी आ जाती है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जाते, आपकी वालिदा जाती तो उस गार के अंदर एक बड़ा पत्थर लगा करके जाती. आप उसके अंदर जो है वहीं पर महफूज रहते. और जब 1 साल के हो गए तो चलने लगे, पांव से चलने लगते हैं. और जब बाहर आने का इरादा आया तो आपका जहन देखें कितना तेज था. बचपने में आप आए उसी जगह पर और आपने देख लिया कि ये वही पत्थर है जो बंद कर दिया जाता. आपने हाथ लगाया, पत्थर हट जाता है. ऐसा पत्थर जिसको हटाने के लिए जवान बड़ी ताकत हिम्मत चाहिए, वो हट जाता. पता चलता है कि अंबिया की ताकत और है, इंसानों की ताकत और है. बात समझे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आना था अल्लाह ने पैदा फरमाया. और नमरूद को जो है वो चाहता था कि पैदा ना हो, लेकिन अब अल्लाह चाहता था. अब देख फिरौन का, आप देख ले फिरौन के जब नजूमियों ने कहा कि ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को ज़वाल देगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए या नहीं हुए? और उसी के महल में परवरिश हो रही है. यानी फिरौन के ही महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी हो रही है, दुश्मन के ही महल में परवरिश हो रही है. तो रब चाहता है वही होता है, तकदीर मुबरम को कोई टाल नहीं सकता है. बात समझे? तो अब तो ये तकदीर को पैदा फरमाया, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लल. तो अब इससे आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला
جو بڑے مزیدار ہے، آپ کو بڑی دلچسپ باتیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعے میں آپ کو یہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔